Hello students, in this video we will discuss fourth chapter from the diary of Anne Frank from First Flight book. So this lesson is an excerpt from Diary of a Young Girl. It is an autobiography that was first published in 1947. In this, Anne expresses her thoughts in a diary which was gifted to her on her 13th birthday. She names the diary Kitty, which she considers as her only true friend. She mentions about her childhood, her family, and a lot other things that she told no one else. Annalise Mary Anne Frank was born on 12 June 1929 and died in 1945. She was a German born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and four friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II. Her family had moved to Amsterdam after the Nazis gained power in Germany but were trapped when the Nazi occupation extended into the Netherlands. As persecution against the Jewish population increased, the family went into the hiding in July 1942 in hidden rooms in her father Otto Frank's office building. सो जो एन थी वो ज्यूइश गर्ल थी जर्मन की एंड उन्होंने ये जो अपना मीन्स जो डायरी लिखी वो कहाँ पर रहकर लिखी थी एम्स्टर्डम में जब क्या चल रहा था वर्ल्ड वॉर 2 एंड जो उसकी फैमिली है वो एम्स्टर्डम मूव कर गई किस वजह से रीज़न क्या था बिकॉज नाजीज जो थे उन्होंने क्या है जर्मनी को कैप्चर कर लिया था बट आफ्टर दैट नाजीज ऑल्सो कैप्चर्ड द एम्स्टर्डम ऑल्सो नीदरलैंड्स ऑल्सो सो जैसे कि उनका जो क्रूअल एक्ट है नाजीज का अगेंस्ट द जूइश पॉपुलेशन वो क्या बढ़ता ही गया एंड जो फैमिली है वो कहाँ पर चलेगी हाइडिंग रूम जो कि कहाँ पर था उसके जो फादर थे ऑटो फ्रैंक्स उनके ऑफिस बिल्डिंग में वहाँ पर वो जुलाई 1942 में क्या है जाकर छिप गए आफ्टर 2 years in hiding the group was betrayal and transported to the concentration camp system where Anne died of typhus in Bergen Belsen within days of her sister. Margot Frank, her sister name was Margot Frank. Her father Otto, the only survivor of the group, returned to Amsterdam after the war extended to find that her diary had been saved. Convinced that it was a unique record, he took action to have it published in English under the name The Diary of a Young Girl. Then वहाँ पे हाइडिंग प्लेस में रहने के बाद आफ्टर 2 years क्या होता है जो ग्रुप था वो क्या है उन्हें मींस बिट्रेयल कर दिया गया धोखा दिया गया और वो बाद में कहाँ पर चले गए concentration camp system. Concentration means camp where large number of persons are detained, means जिनको क्या कस्टडी में रखा जाता है वो वहाँ पर चले जाते हैं एंड वहाँ पर जो एन है वो क्या है टाइफस की वजह से उसकी डेथ हो जाती है विद द डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गोट और उसकी सिस्टर की भी क्या है वहाँ पर डेथ हो जाती है तो जो फ्रैंक है उसकी फैमिली में सिर्फ कौन सर्वाइवल होता है उसके फादर जो कि कहाँ पर चले जाते हैं वापस एम्स्टर्डम में जब क्या वॉर ख़त्म होती है एंड वहाँ पर जब वो देखते हैं उसके फादर की उसकी जो डायरी है वो अभी भी सेव्ड है
सो तो उन्हें लगता है कि ये एक यूनिक रिकॉर्ड है कि जो एन एन की डायरी थी वो क्या है, एक यूनिक रिकॉर्ड था। तो इसी वजह से उन्होंने क्या है इसके लिए एक्शन लिया और इसको पब्लिश करवाया under the name The Diary of a Young Girl. The diary was given to Anne Frank for her 13th birthday and chronicles the events of her life from 12 June 1942 until its final entry of 1 August 1944. तो इस डायरी में कौन से इवेंट्स लिखे थे, मींस उसने क्या 12 जून 1942 से लेकर जो कुछ भी उसके साथ 1 अगस्त 1944 तक हुआ उसके सारे इवेंट्स उसने इस डायरी में मेंशन किए थे। इट वाज eventually translated from its original Dutch into many languages and became one of the world's most widely read books. तो ये जो डायरी थी उसने लिखी डच लैंग्वेज में थी, बट वो बाद में क्या है, ये जो डायरी है वो बहुत सारी लैंग्वेजेस में क्या है उसे कन्वर्ट किया गया। देयर हैव ऑल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, टेलीविजन, थिएट्रिकल प्रोडक्शंस एंड इवन एन ओपेरा बेस्ड ऑन द डायरी। तो इसके ऊपर काफ़ी सारे थिएट्रिकल प्रोडक्शंस हुई, ओपेरा, टेलीविजन शोज, फिल्म्स दिखाई गई इस डायरी के ऊपर। Described as the work of a mature and insightful mind, the diary provides an intimate examination of daily life under Nazi occupation. तो इसमें क्या है, वहाँ पर जब नाजीज़ ने क्या है उन्हें कैप्चर किया हुआ था, उस टाइम की जो डेली लाइफ थी उनकी, उसके बारे में क्या है सब एन ने क्या इस डायरी में मेंशन किया था। तो वहाँ से हम उस टाइम पीरियड के बारे में जान सकते हैं कि उस टाइम पे उनके ऊपर क्या क्या मींस उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई वहाँ पर ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू। Anne Frank has become one of the most renowned and discussed of the Holocaust victim. तो जो एन फ्रैंक है वो क्या है बहुत ही ज़्यादा फेमस हो जाती है इस डायरी की वजह से। Writing in a diary is a really strange experience for someone like me. Not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13 years old schoolgirl. Oh well, it doesn't matter. I feel like writing and I have a greater need to get all kinds of things off my chest. तो इसमें एन क्या कहती है कि जो डायरी लिखना है वो सबसे स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है उसके जैसे पर्सन्स के लिए, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि उसने क्या पहले कभी डायरी नहीं लिखी, बट इसलिए भी क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि अगर वो डायरी लिखती है तो एक बार लिखने के बाद उसकी डायरी ना तो वो पढ़ेगी दोबारा से और ना ही कोई और पढ़ेगा, क्योंकि किसी को भी इंटरेस्ट नहीं होगा कि 13 ईयर्स ओल्ड गर्ल जो है उसकी क्या कोई डायरी रीड करे, कि मीन्स जो भी उसने म्यूजिंग मीन्स पीरियड ऑफ थॉट्स जो भी उसने उसमें लिखा है उसको कोई क्या उसे रीड करेगा। बट वो कह रही कि ये मैटर नहीं करता, तो उसको लग रहा था कि वो क्या डायरी लिखे, मीन्स उसके मन में था। एंड उसके माइंड में ये भी था कि मैंने क्या अपनी जो फीलिंग्स है वो क्या एक्सप्रेस करनी है, तो यही एक वे है जिससे क्या है वो अपनी सारी फीलिंग्स क्या है एक्सप्रेस कर सकती है। पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. I finally stayed where I was brooding. Yes, paper does have more patience
And since I am not planning to let anyone else read this stiff backed notebook, grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. सो इसमें एन कहती है कि जो पेपर है उसमें क्या है, ज़्यादा पेशेंस है अकॉर्डिंग टू पीपल। मीन्स जो पेपर है, मीन्स अगर हम पेपर के साथ क्या कोई अपनी थॉट्स डिस्कस करते हैं या कुछ भी राइट डाउन करते हैं पेपर के ऊपर, तो वो जो पेपर है वो ज़्यादा क्या है, उसमें पेशेंस होगी। मीन्स वो उसकी बातें किसी को नहीं बता सकता। बट जो लोग होते हैं वो क्या है, बहुत जल्दी क्या है, दूसरों की बातें क्या है किसी और के आगे कर देते हैं। देन ये बातें उसने तब सोची जब क्या वो बहुत ही ज़्यादा मीन्स डिप्रेस थी उस वर्ल्ड वॉर के दौरान। एंड वो क्या अपने घर पे बैठी थी एंड बहुत ही ज़्यादा सोच में पड़ी हुई थी, अपनी चिन को हैंड में रख के बोर हो रही थी एंड लिस्टलेस। मीन्स वो ये सोच रही थी कि वो अंदर ही रहे या फिर बाहर जाए। फाइनली वो क्या करती है, जहाँ पर होती है वहीं पर बैठी रहती है एंड ब्रूडिंग, ब्रूडिंग मीन्स एंगेज इन डीप थॉट्स विच मेक यू सैड एंड एंग्री। सो वो वहीं पर बैठी बैठी कुछ सोचती रहती है। देन फिर उसको लगता है कि हाँ सचमुच में पेपर जो है उसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस है एंड इसीलिए क्या है, वो अपनी जो डायरी है वो क्या है लिखना चाहती है। एंड उसको लगता है कि उसका कोई रियल फ्रेंड नहीं है, तो उसको लगता है कि वो डायरी से ही क्या है अपनी जो फीलिंग्स है वो क्या है शेयर कर सकती है। तो उसे लगता है कि उसको क्या है एक अपना रियल फ्रेंड क्या है, जब तक मीन्स उसे अपना रियल फ्रेंड नहीं मिल जाता तब तक क्या है वो डायरी लिखेगी। क्योंकि डायरी में और फ्रेंड में उसे कोई भी क्या है ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगता। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस। आई डोंट हैव अ फ्रेंड मीन्स मेनली उसने डायरी क्यों लिखनी स्टार्ट की थी, क्योंकि उसकी कोई फ्रेंड नहीं थी। Let me put it more clearly, since no one will believe that a 13 years old girl is completely alone in the world, and I am not. I have loving parents and a 16 years old sister, and there are about 30 people I can call friends. I have a family, loving aunts, and and a good home. No, on the surface I seem to have everything except my one true friend. वो कह रही कि चलो मैं और क्लियर करती हूँ कि कोई भी ये बिलीव नहीं करेगा वैसे तो कि जो 13 ईयर्स ओल्ड गर्ल है वो क्या बिल्कुल अकेली है वर्ल्ड में। और वो कहती कि मैं थी भी नहीं अकेली, मैं थी भी नहीं, क्योंकि उसके पेरेंट्स थे, लविंग पेरेंट्स थे, 16 ईयर्स ओल्ड सिस्टर थी उसकी एक, एंड 30 ऐसे पीपल थे जिनको वो क्या फ्रेंड कह सकती थी। एंड उसकी जो फैमिली थी, लविंग ऑन्ट्स, एंड उसका क्या था और गुड होम भी था। एंड नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई ओन माई वन ट्रू फ्रेंड। सिर्फ उसके पास क्या नहीं था, एक ट्रू फ्रेंड। ऑल आई थिंक अबाउट वेन आई एम विद फ्रेंड्स इज़ हैविंग अ गुड टाइम। उसको ये याद था कि मीन्स जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ होती थी तो बहुत ज़्यादा वैसे इंजॉय करती थी। आई कॉन्ट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डनरी एवरी डे थिंग्स। वो क्या है, बट जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ होती थी तो सिर्फ वो ऑर्डनरी बातें करती थी, जो नॉर्मली बातें होती है डेली लाइफ की, सिर्फ वही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करती थी। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम। तो वो क्या किसी के भी बहुत ज़्यादा क्या क्लोज नहीं हो पाई, मीन्स अपनी जो इनर फीलिंग्स है उसको शेयर नहीं कर पाई, यही उसकी प्रॉब्लम थी। मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर। सो तो कह रही कि यही शायद फॉल्ट हो सकता है उसका, कि वो क्या है
किसी के साथ अपनी जो पर्सनल या फिर जो प्राइवेट थिंग्स है वो क्या है शेयर नहीं कर पाती, मीन्स वो किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाती थी, इसीलिए उसने डायरी लिखना शुरू किया. इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज. दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी. तो वो क्या है, इसी प्रॉब्लम को मीन्स इसी अपनी हैबिट को चेंज भी नहीं कर पाई, इसीलिए उसने क्या स्टार्ट किया, डायरी लिखना. टू एनहांस द इमेज ऑफ हिज लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, I don't want to jot down the facts in the diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend and I am going to call this friend Kitty. तो वो कहती है, तो इतना जो लॉन्ग वेटेड फ्रेंड था उसका, मीन्स जो डायरी है, मीन्स जिसके बारे में वो बहुत देर से सोच रही थी कि हाँ कभी मेरा कोई फ्रेंड बनेगा, उसके साथ मैं अपनी फीलिंग्स शेयर करूँगी, ठीक है. तो उसके लिए वो क्या करती है, वो कह रही कि आई डोंट वांट टू जोट डाउन द फैक्ट्स इन द डायरी द वे मोस्ट पीपल, कि जैसे दूसरे लोग क्या है मीन्स डायरी में क्या अपने पास्ट के बारे में अपनी इंट्रोडक्शन देते हैं, वो कह रही कि मैं ऐसा नहीं करूँगी. मैं सिर्फ चाहती हूँ, बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, मैं चाहती हूँ कि जो डायरी है वो क्या है, मेरी फ्रेंड बन जाए. एंड उसको मैं क्या किस नाम से बुलाऊँगी, किटी के नेम से. सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी इफ आई वर टू plunge right in. I had better provide a brief sketch of my life, must as I dislike doing so. वैसे तो उसको ये चीज़ पसंद नहीं थी कि हाँ अपनी पहले इंट्रोडक्शन देनी या फिर सब कुछ अपने पास्ट के बारे में डायरी में लिख देना, जैसे कि उसने पहले बताया भी है, बट फिर भी वो क्या कहती है, वो कह रही कि कोई उसकी स्टोरी को मीन्स उसके वर्ड्स को नहीं समझेगा अगर वो क्या है उससे पहले क्या नहीं देती, इंट्रोडक्शन नहीं देती. प्लंज मीन्स टू स्टार्ट राइट. अगर वो सीधा ही लिखना शुरू कर देती है तो शायद उसकी डायरी को क्या है कोई समझ नहीं पाएगा, इसीलिए वो उसके लिए बेटर क्या होगा कि वो पहले अपनी ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ मीन्स पहले वो अपनी क्या उसमें इंट्रोडक्शन दे, जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था. My father, the most adorable father I have ever seen, didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. My mother, Margot, was born in Frankfurt in Germany in 1926. I was born on 12 June 1929. I lived in Frankfurt until I was 4. My father immigrated to Holland in 1933. My mother, Edith Hollander Frank, went with him to Holland in September, while Margot and I were sent to Aachen to stay with our grandmother. Margot went to Holland in December and I followed in February when I was plunked down on the table as a birthday present for Margot. तो वो बताती कि अब वो क्या इंट्रोडक्शन दे रही है कि वो बताती कि उसके फादर बहुत ही ज़्यादा एडोरेबल पर्सन थे. एंड उसके फादर ने तब तक उसकी मदर के साथ मैरिज नहीं करवाई थी जब तक वो क्या है 36 ईयर्स के नहीं हो गए थे और उसकी मदर 25 की. एंड जो उसकी सिस्टर मार्गोट थी उसका बर्थ कहाँ हुआ था, फ्रैंकफर्ट में इन जर्मनी 1926 में. एंड जो एन थी उसका बर्थ हुआ था 12 जून 1929 में. एंड जब तक वो 4 इयर्स की थी तब तक वो फ्रैंकफर्ट में ही रही. एंड बाद में उसके जो फादर थे वो कहाँ पे इमिग्रेट हो गए. इमिग्रेट मीन्स टू लीव वंस ऑन कंट्री इन ऑर्डर टू सेटल परमानेंट इन अनदर. तो उसके फादर परमानेंटली कहाँ पर शिफ्ट हो गए थे, हॉलैंड में 1933 में. एंड जो उसकी मदर थी वो भी क्या सितंबर में हॉलैंड में चले जाती है उसके फादर के पास. जबकि क्या जो मार्गोट है मीन्स उसकी सिस्टर और एन थी उसे कहाँ पर भेज दिया गया था, जर्मनी में एकिन में, जहाँ पे उसकी कौन रहती थी, ग्रैंड मदर. एंड जो मार्गोट है वो बाद में क्या है दिसंबर में हॉलैंड शिफ्ट हो गई. एंड बाद में फरवरी में जो एन है वो भी क्या है
अपने पेरेंट्स के पास चली गई। तो उसको ऐसा लगता था कि उसको क्या है, एक तरह से पुट डाउन इन अ कैजुअल वे ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट, कि मार्गोट के क्या बर्थडे का जैसे कि प्रेजेंट दिया हो, ऐसे क्या उसको वहाँ पर भेजा गया, मीन्स हॉलैंड में, क्योंकि उस टाइम पे मार्गोट का बर्थडे था। तो इसीलिए जो एन है उसको क्या है वहाँ पर हॉलैंड में बुलाया गया। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्सरी Montessori Nursery School. I stayed there until I was 6, at which time I started in the first form. In the sixth form, my teacher was Mr. Cooperus, the headmistress. At the end of the year, we were both in tears as we said a heartbreaking farewell. In the summer of 1941, Grandma fell ill and had to have an operation, so my birthday passed with little celebration. तो उसने वहाँ पे अपनी जो स्कूलिंग है वो कहाँ पर स्टार्ट की थी, मॉन्टसरी नर्सरी स्कूल से। वो वहाँ पर कब तक रही, 6 ईयर्स, मींस जब तक वो या 6 ईयर्स की हो गई थी तब तक वो वहीं पर रुकी हॉलैंड में। एट विच टाइम स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, तब क्या उसने फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट किया था, फर्स्ट क्लास से। और जब वो 6th क्लास में गई तो उसकी जो टीचर है उसका नेम क्या था, मिसेस कोपेरस, उनकी हेड मिस्ट्रेस थी। एंड जब ईयर के एंड में क्या उसे जाना था उस स्कूल से, तो वो बहुत ही ज़्यादा रोई, मींस दोनों जो टीचर थी कोपेरस एंड जो एन थी वो बहुत ही ज़्यादा रोती है एट द टाइम ऑफ फेयरवेल। एंड इन द समर ऑफ 1941 में क्या होता है, उसकी ग्रैंड मदर जो है वो बीमार हो गई एंड उसका ऑपरेशन हुआ। सो उसका जो बर्थडे है वो क्या है, ऐसे ही लिटिल सेलिब्रेशन के साथ निकल गया। ग्रैंड माँ डाइड इन जैन 1942। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर and still love her. This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other, and Grandma's candle was lit along with the rest. The four of us are still doing well, and that brings me to the present date of 20 June 1942 and the solemn dedication of my diary. जो ग्रैंड मदर थी उसकी वो 1942 में क्या है उसकी डेथ हो जाती है। बट किसी को भी ये नहीं पता होता कि वो उसको कितना प्यार करती थी अपनी ग्रैंड मदर को। और जो 1942 में उसका बर्थडे था एन फ्रैंक का, वो मीन्स ज़्यादा मीन्स अच्छी तरह नहीं क्या सेलिब्रेट किया गया। बट उस बर्थडे पे क्या है उसने अपनी ग्रैंड माँ की तरफ से भी एक जो कैंडल है उस पर लिट की थी। तो मतलब वो 4 जो पर्सन थे, 4 पर्सन्स मीन्स उसके मदर, फादर, उसकी सिस्टर एंड एन, वो क्या है अपनी लाइफ जो अच्छी तरह से स्पेंड कर रहे थे। एंड द सोलेमन डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। और वो क्या है उस टाइम पे अपनी जो डायरी है वो सीक्रेटली क्या है लिख रही थी। Dearest Kitty, our entire class is quaking in its boot. The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will kept back. Half the class is making bets. GN and I laugh ourselves silly at the 2 boys behind us, CN and Jackus, who have staked their entire holiday saving on their bet from morning to night. It's you are going to pass. No, I am not. Yes, you are. No, I am not. Even GS pleading glances and my angry outburst can't calm them down. If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back, but teachers are the most unpredictable creatures on अर्थ। तो अब वो डायरी स्टार्ट करती कि उसने डायरी में क्या लिखा था। उसने डायरी में क्या लिखा था कि उसकी जो एंटायर क्लास थी उसमें किसकी आवाज़ आ रही थी, बूट्स की, मीन्स क्वेकिंग
क्वेकिंग इन इट्स बूट्स का मीनिंग है शेकिंग विद नर्वसनेस, कि सभी क्या है बहुत ज़्यादा नर्वस थे, जिस वजह से क्या है वो अपने बूट्स को शेक कर रहे थे। एंड रीज़न क्या था कि उनका जो रिज़ल्ट है वो आने वाला था, उनकी मीटिंग होने वाली थी जिसमें उसके टीचर्स उसका रिज़ल्ट बताने जा रहे थे। एंड उससे पता चलना था कि वो नेक्स्ट क्लास में जाएगी या फिर उसी क्लास में उन्हें रुकना मीन्स रहना पड़ेगा। देन उनकी जो क्लास थी, हाफ क्लास जो है वो बेट्स लगा रही थी कि कौन पास होगा या कौन क्या है फेल होगा। सो उसकी फ्रेंड जो जीएन और एन थी, वो क्या है वहाँ पर जो 2 बॉयज़ थे सी एन एंड जैकस, उनके ऊपर क्या है वो हंस रही थी, क्योंकि क्या है उन दोनों बॉयज़ ने अपनी पूरी जो हॉलीडे सेविंग थी वो किस पे लगा दी थी, स्टेक पे, मींस पुट ऑन रिस्क। उन्होंने क्या है स्टेक पे लगाई, मींस उसने क्या बेट लगाई उन उस मनी से, हॉलीडे सेविंग वाली जो मनी थी उसकी। तो मॉर्निंग टू नाइट तक क्या है वो सिर्फ क्लास में यही बातें करते थे कि हाँ यू नो आई एम नॉट, यस यू आर, नो आई एम नॉट, कि मतलब मीन्स तुम पास होगे या फिर तुम पास नहीं होगे। देन जो जीएस प्लीडिंग थी, मीन्स उसकी जो फ्रेंड्स थी, एंड जो एन खुद थी, वो क्या है उन बच्चों को क्या बहुत ज़्यादा काम करने की कोशिश कर रही थी कि अब चुप हो जाओ, मीन्स बहुत ज़्यादा प्लीडिंग्स रिक्वेस्ट कर रही थी उनसे। देन वो कह रही कि अगर तुम मुझसे पूछोगे तो मैं बताती हूँ कि हमारी क्लास में क्या बहुत सारी डमीज थी, अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास, मीन्स 1/4 ऑफ द क्लास क्या थी, डमीज। डमीज मीन्स जो वीक स्टूडेंट्स होते हैं। बट वो कहती है जो टीचर्स है मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स हैं अर्थ पे, कि मीन्स वो क्या है रिजल्ट कुछ भी निकाल सकते हैं। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई girlfriends and myself, we will make it. The only subject I am not sure is maths. Anyway, all we can do is wait. Until then, we keep telling each other not to lose heart. देन वो इतनी ज़्यादा वरीड नहीं थी, क्योंकि उसको पता था कि उसकी जो गर्लफ्रेंड मीन्स फ्रेंड्स एंड जो वो है वो क्या पास हो जाएगी। सिर्फ उसको एक ही सब्जेक्ट की टेंशन थी, वो सब्जेक्ट था मैथ्स। तो वो कह रही कि चलो कोई बात नहीं, हम क्या है वेट ही कर सकते हैं। तब तक क्या है वो एक दूसरे को क्या है मीन्स एक दूसरे को कहते थे कि तुम अपना दिल मत हारो, मीन्स टेंशन मत लो, एक दूसरे को मीन्स बोलते हैं वो। I get along pretty well with all my teachers. There are 9 of them, 7 men and 2 men. Mr. Keesing, the old Fauji, who teaches maths, was annoyed with me for ages because I talked so much. After several warnings, he assigned me extra homework, an essay on the subject, a chatterbox. A chatterbox? What can you write about that? I had worry about that later. I decided. I jotted down the title in my notebook, tucked it in my bag and tried to keep quiet. Then उसकी क्या अपने सारे टीचर्स के साथ बहुत ज़्यादा बनती थी। उनके स्कूल में 9 टीचर्स थे, उनमें से 7 मेन थे एंड 2 वीमेन। एंड जो मिस्टर कीजिंग थे वो क्या एक तो ओल्ड फैशन पर्सन थे, जो कि उन्हें मैथ्स टीच करते थे, एंड वो हमेशा ही उससे नाराज़ रहते थे बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा बोलती थी। एंड काफ़ी सारी वार्निंग्स के बाद वो उसे एक्स्ट्रा होमवर्क देते हैं। वो एक ऐसे लिखने के लिए देते हैं जिसका टाइटल क्या था, अ चैटर बॉक्स। तो वो सोचती है चैटर बॉक्स, उसके बारे में वो क्या लिख सकती है। तो उसके बाद क्या उसे टेंशन होने लगती है। फिर वो डिसाइड करती है, वो क्या करती है, जोटेड डाउन मीन्स राइट डाउन। वो क्या है उसमें टाइटल लिखती है अपनी नोटबुक पे, एंड उसको किस में रख लेती है, टक्ड मीन्स कीप इन माई बैग मीन्स नोटबुक को देन वो बैग में रख लेती है एंड चुप रहने की कोशिश करती है। दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, द नोट अबाउट द essay caught my eye. I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing argument to prove the necessity of talking. I thought and thought, and suddenly I had an idea.
I had an idea. I wrote the 3 pages Mr. Keesing has had assigned me, and I was satisfied. I argued that talking is a student's trait and that I would do my best to keep it under control. देन क्या उस शाम को जब वो अपना सारा होमवर्क कर लेती है, उसके बाद उसको उसकी जो निगाह है वो किस पे पड़ती है, उस ऐसे पे. देन वो सोचना शुरू करती है उस सब्जेक्ट के बारे में, अपने पेन की टिप को क्या है च्यू करते हुए. एंड वो कह रही कि कोई भी पर्सन क्या है पूरे पेजेस जो है वो फिल कर सकता है, मींस काफ़ी लाइंस को स्किप करके या बड़े बड़े वर्ड्स लिख के. बट वो क्या चाहती थी, उसका मेन मोटिव क्या था कि वो क्या है एक ऐसा कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट लिखे, मींस ऐसी स्टेटमेंट लिखे जिससे क्या है उसके टीचर को ये रियलाइज़ हो कि बच्चों के लिए क्या है बोलना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है. तभी क्या उसे आइडिया आता है एंड वो 3 पेजेस लिखती है वही उसी टॉपिक पे जो उसके टीचर ने दिया था, मिस्टर कीजिंग ने. एंड वो सेटिस्फाइड हो जाती है उसको लिखने के बाद. उसमें वो लिखती है कि जो टॉकिंग है वो क्या स्टूडेंट्स का ट्रेट है, मींस क्वालिटी है. एंड वो कह रही कि वो इस क्वालिटी को क्या है कंट्रोल में रखने की पूरी कोशिश करेगी. बट that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not more, and that there is not much you can do about inherited traits. तो वो कह रही कि वो शायद क्या अपनी इस हैबिट को क्या क्योर करने में कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगी, क्योंकि उसकी मदर भी क्या मेरे उसके जितना ही बोलती थी, इफ़ नॉट मोर, चाहे ज़्यादा नहीं बट उसकी मदर भी क्या एंड फ्रैंक जितना ही बोलती थी. एंड हम क्या है जो हमारे इनहेरिटेड ट्रेट्स होते हैं, इनहेरिटेड ट्रेट मीन्स क्वालिटीज़ दैट वन गेट्स फ्रॉम वंस पेरेंट्स. तो कह रही कि इनको क्या है कोई भी रोक नहीं सकता, इनहेरिटेड ट्रेट्स को कोई भी क्या कंट्रोल नहीं कर सकता. Mr. Giesing had a good laugh at my argument, but when I proceeded to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay. This time it was supposed to be on an incorrigible chatterbox. I handed it in, and Mr. Giesing had nothing to complain about for 2 whole lessons. However, during the third lesson, he had finally had enough. And Frank, as punishment for talking in class, write an essay entitled "Quack Quack Quack," said Mistress Chatterbox. So Mr. Giesing क्या उसकी वो जो उसने नोट लिखा था उसको पढ़ के क्या है वो बहुत ही ज़्यादा हंसते हैं. एंड क्या उसमें लिखा था उसने कि इनहेरिटेड ट्रेट्स को कोई भी क्या कंट्रोल नहीं कर सकता. देन वो फिर दोबारा क्या नेक्स्ट लेसन में बोलती है, तो उसके जो टीचर थे उन्होंने फिर दोबारा उसे क्या सेकंड ऐसे दिया. वो किसके ऊपर था सेकंड ऐसे, एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स मीन्स समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, मीन्स जिस चीज़ को कोई भी क्या करेक्ट नहीं कर सकता. मतलब क्या था कि जो उसकी हैबिट थी उसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता था, इसीलिए उसके टीचर ने उसे ऐसे क्या दिया, एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स. उसने वो लिख कर दे दिया. एंड मिस्टर कीजिंग जो है उनके पास कंप्लेन करने के लिए कुछ रहा ही नहीं. एंड 2 जो लेसन थे वो ऐसे ही निकल गए. बट थर्ड लेसन के ड्यूरिंग क्या हुआ, जो उसके सर थे उन्होंने दोबारा से उन्हें क्या पनिशमेंट दी, क्योंकि वो क्लास में टॉक कर रही थी. एंड उसका नेम क्या था, उसका टाइटल क्या था, Quack 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 said Mistress Chatterbox. थर्ड टाइम उन्होंने किस पे दिया था, Quack 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 said Mistress Chatterbox. So the class roared. I had to laugh too, though I had nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatterboxes. It was time to come up with something else, something original. My friend Sane, who's good at poetry,
offered to help me write the essay from beginning to end in verse, and I jumped for joy. Mr. Giesing was trying to play a joke on me with this ridiculous subject, but I had make sure the joke was on him. तो सारी क्लास हंसने लग गई इस टाइटल का नेम सुन के, और वो खुद भी हंसती है जो एन होती है. एंड बट वो क्या बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड भी थी इस टॉपिक को लेके, चैटर बॉक्स वाले टॉपिक को लेके. एंड बट वो उसने सोचा कि इस बार क्या है वो कुछ ऐसा लिखेगी जो क्या है कुछ ओरिजिनल हो. देन उसकी जो फ्रेंड थी सेन, वो क्या बहुत अच्छी पोइट्री लिखती थी, तो उसने उसको क्या है कहा कि वो उसकी हेल्प करेगी उस ऐसे को लिखने में. किस में? इन वर्स, मीन्स पोइट्री की फॉर्म में क्या है वो उसकी मीन्स उस ऐसे को लिखने में उसकी हेल्प करेगी. एंड वो बहुत ही खुश होती है. तो जो उसके टीचर थे वो क्या है उसका मजाक उड़ाना चाहते थे ऐसा रिडिकुलस फनी सब्जेक्ट दे के, बट उसे श्योरिटी थी कि वो जो जोक है वो उस सर पे ही क्या भारी पड़ेगा. सो आई फिनिश्ड अप माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल. इट वॉज अबाउट अ मदर duck and a father swan with 3 baby ducklings who were bitten to death by the fathers because they quacked too much. Luckily, Mr. Keesing took the joke the right way. So उस poem में उसने क्या लिखा था, वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल पोएम थी. एंड किसके बारे में थी? मदर डक एंड अ फादर स्वैन, जिसके 3 बेबी डकलिंग्स थे. एंड जिनको क्या है बहुत ज़्यादा बीट किया गया और क्या है उनको मार दिया गया. किस वजह से? किसने मारा था? फादर ने उन बेबी डकलिंग्स को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्या है बोलते थे. क्वैक्ड टू मच, बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच. तो इस बार क्या जो मिस्टर कीजिंग थे उनको क्या है जो उसका जो मेन पर्पस था एन का ये जो पोइट्री लिखने का, उनको समझ आ जाता है. He read poem to the class, adding his own comments and to several other classes as well. तो वो क्या उसकी जो पोएम है वो क्लास में रीड करते हैं, अपने कमेंट्स ऐड करते हैं, एंड बहुत और भी बाकी क्लासेस में जाकर क्या वो ये बताते हैं स्टोरी पोएम जो लिखी थी उसने. सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवंट बीन असाइंड माई एक्स्ट्रा होमवर्क. तब से क्या है उसको क्लास में बोलने के लिए अलाउ कर दिया गया और उसको कोई भी एक्स्ट्रा जो होमवर्क है वो नहीं दिया गया. ऑन द कॉन्ट्रेरी, मिस्टर कीजिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज. और क्या होता है उस टाइम पे जो मिस्टर कीजिंग है वो खुद भी क्या है एन की तरह जोक्स जो हैं वो करना उन्होंने भी करना शुरू कर दिया. मीन्स जैसे एन जो है क्लास में हंसती थी बातें करती थी, वैसे ही क्या है जो मिस्टर कीजिंग है उन्होंने भी क्या वैसा ही करना स्टार्ट कर दिया. मीन्स उनको क्या है रियलाइज़ हो गया कि जो स्टूडेंट्स हैं जो चिल्ड्रन हैं वो क्या है बिना बोले जो है वो नहीं रह सकते. मीन्स उनका ये एक ट्रेट है, चिल्ड्रन है उनका जो ये क्या है एक तरह की हैबिट है बोलने की, वो बोले बिना क्या है नहीं रह सकते. सो उनको लास्ट में क्या ये चीज़ रियलाइज़ हो जाती है. So this is what about the chapter. Thank you very much.